video 2 of factorization of quadratic trinomial. Now this time the type is that we have got some coefficient other than 1 in the term a square, x square. That means the quadratic trinomial are in the form of ax square plus bx plus c. So a is the coefficient of x square. So in the previous video we saw that the coefficient of x square, if is 1, then the factorization is done in a particular way. But there is not much change as such we see. When there is some coefficient other than a, what we do is first we multiply. We take up the first question over here and let us have a look. 4x square plus 13x plus 9. So what happens, we multiply 9 for the 36. We multiply the constant with the coefficient of x square. That means the constant is 9 and the coefficient of x square is 4. So 9 for the 36. Now the hint is here the sign of the constant is plus. So if the sign of the constant is plus, then the splitting will be done in such a way that both the splitted term will have the same sign, and that sign will be this one, plus. So that means 9 for the 36, so 36, and 9 plus 4 is 13, isn't it? 9 plus 4 is 13 and 9 into 4 is 36. So we can write 4x square plus 9x plus 4x plus 9. Now here what we are getting? We are getting x common. So 4x plus 9, and here nothing is common, that means 1 we can take out, 4x plus 9, and finally we have 4x plus 9 and 4x plus 9. So that is common, so we get x plus 1. So this is the factorized form. So not much change over here according to the concept. First we have to look at the sign of the constant, and if the constant is plus, that means both of the split term will have same sign, and that sign will have the middle one. So here the sign was plus, but let us have a look. I try to make this a little different. So what I will do is 5x square, the second question, this was first and this is second question now. 5x square minus 14x and plus 8. So now 8 5 is 40, isn't it? Now 8 5 is 40, so the splitting over here will be guided by this plus साइन ऑफ द कांस्टेंट का साइन आपको बताता है कि स्प्लिट में क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट टर्म का साइन क्या रखना पड़ेगा। स्प्लिट टर्म का साइन क्योंकि यहाँ प्लस है तो दोनों का सेम होगा। नाउ वी कैन स्प्लिट, गुना करने पर 40 आना चाहिए और जोड़ने पर -14, तो -14 का मतलब है 10 और 4, 10 4 द 40 एंड 10 और प्लस 4 14 मतलब, लेकिन साइन दोनों का नेगेटिव होगा क्योंकि ये वाला साइन दोनों स्प्लिट को मिलेगा, सेम साइन। Alright, so that means what will happen? This will be 5x square plus 10x minus 10x, sorry, minus 10x minus 4x plus I. So we take 5x common, so this is x minus 2. We take 4 common, so this is x minus 2. We take x minus 2 common, so this is 5x minus 4. So this is how things are moving. Now we come to the next part which is very important here, और clear होगा आपका concept कि 6x square plus 7x minus 5, इसमें क्या करते हैं? have a good look. इसमें क्या करते हैं? 6 और 5 को गुना करते हैं तो मुझे 30 आता है। जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर वो हमें गाइड करता है कि अब घटाने पर 7 आना चाहिए। तो हमको मालूम है 10 into 3 is 30 और 10 में से 3 घटाएंगे तो हमको 7 आएगा, लेकिन 10 को प्लस दे और 3 को माइनस की, 3 को प्लस दे और 10 को माइनस दे, ये सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं लगाना है। यहाँ पर जो साइन होगा वो बड़े वाले का साइन होगा, यानी 6x स्क्वायर, अब बड़ा तो 10 है तो प्लस 10x और माइनस 3x माइनस 5। दिस इज व्हाट इज इट, स्प्लिट एज। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इसमें आपको आ रहा है 2x कॉमन, तो आपको अंदर बच गया 3x प्लस 5 और यहाँ पर -1 कॉमन आ रहा है तो 3x, और जैसे बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज होगा। नाउ दिस इज 3x प्लस 5 एंड 2x माइनस 1। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ये बातों को, बेसिक बात का ध्यान दीजिए, तो साइन में बार-बार कंफ्यूज नहीं होगा कि घटाऊं जोड़ूं क्या करूं। आपको सिंपल है यहाँ पर पिकअप करना है कि मुझे क्या करना है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में, थर्ड था, फोर्थ क्वेश्चन में बहुत ही इजी है, मैं पिकअप करके आपको बताता हूँ। 7x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8, क्रिस्टल क्लियर थॉट्स में रहिए। 7 8 का 56 आपने लिख लिया। अब यहाँ का साइन नेगेटिव है, यानी घटाने पर 10 आना है।
तो आपको 14 इंटू 4 जो होगा वो 56 होगा, और 14 में से 4 घटाएंगे तो आपको 10 आ जाएगा। लेकिन इसका साइन रखें क्या, 14 का प्लस रखें या माइनस रखें, 4 का प्लस रखें या माइनस रखें, वो आपको सोचना नहीं, आपको यहाँ का साइन देना है, बड़ा वाला में माइनस रख दीजिए, छोटा वाला में प्लस रख दीजिए। यानी यहाँ पर जो साइन होता है वो हमेशा मिलता है बड़े वाले को। तो 7x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4x माइनस 8। दो बातें फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना क्या है, यहाँ पर कौन सा साइन है, नेगेटिव 8 है। तो नेगेटिव 8 का मतलब है कि स्प्लिट होने पर हमको घटाने से मिडिल टर्म आना चाहिए 10। यानी पहले 7 8 56, 56 पहले तो गुना करके रहे हैं, हमको मालूम है यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है कि हमको घटाने पर -10 आना चाहिए और गुना करने पर 56। तो 14 4 56 होता है, और घटाएंगे 14 में से 4 10 आएगा। लेकिन अब -10 रखें या +10, तो यहाँ पर आपको पहले से सॉरी -14 रखें या प्लस 14 रखें, तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव बड़ा वाला मिलेगा। नाउ व्हाट विल हैपन, 7x x - 2 प्लस 4x - 2। अब हम लोग x - 2 निकाल लेते हैं, तो x - 2 7x प्लस 4। सो हमारा ये आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर है, आप इसको बनाइए एंड देन जस्ट पुट ऑन द कमेंट बॉक्स हाउ डिड यू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल at JET Patna, and that you will get some more topics coming very soon. Thank you.